out of 146 करोड़ people in India, only 7.5 करोड़ people file returns. 3 करोड़ ही लोग टैक्स भरते हैं और उसमें भी 1 करोड़ प्लस टैक्स भरने वाले लोग 45,000 भी नहीं है. तो मैं बोलता हूँ जो लोग 1 करोड़ का टैक्स भरते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. बाकी लोग, मैं उनको ऑर्डिनरी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जर्नी में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए क्या करना है, आपको पात्र बनने के लिए क्या करना है, आपको क्या नॉलेज लेना है, उसके लिए अगर आपको कोई गाइड चाहिए, अगर लोगों को आपके सामने लेके आ रहा है, तो आदमी पहले क्या देखता है, यार सच में ये भरोसे के लायक है क्या. यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतने सारे टूल्स अवेलेबल है, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में इन्वेस्टर कैसे फोकस्ड रहे, इसके लिए आप कैसे सजेस्ट करेंगे? देखो, आदमी के पास 1 करोड़ है तो भी आदमी खुश नहीं है, 10 करोड़ है तो भी खुश नहीं है, 50 करोड़ है तो भी खुश नहीं है, और किसी के पास कुछ नहीं है तो भी वो खुश है. तो ये आदमी का सुखी होना या दुखी होना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है. Want to know little more about the industry from you, like where you are seeing next 5 year financial, personal finance I can say, personal finance अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री कहाँ जाने. आज जो 5 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, ये आपके डिमैट अकाउंट बढ़ेंगे, ये सब चीजें, मतलब ये सारी चीजें बढ़ेगी, लेकिन ये चीजों में कौन क्या कर रहा है, इसका काम पढ़ाई करना, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है वो एडवाइस देना, कौन सा फंड मैनेजर क्या कर रहा है, ये काम मुझे लगता है ये डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी का है, और यही नॉलेज अपने इन्वेस्टर को उसके गोल अचीव करने के लिए हेल्प करेगा, ये मेरा मानना है. If suppose someone has just 500 rupees a month, what's the smartest way to start investing? Here also, we always advise people why you are investing. You invest 1 rupee or 500 rupee or 1000. Why you are investing? You should ask the question. If your goal is retirement, go in small cap fund. Forget it. Start a SIP, systematic investment plan, and be disciplined investor is the answer. SIP is the best way to invest 500 rupee, and don't trade. Don't take more positions in future options or call puts because you are not uplifted. So start with SIP. Keep this money with your fund manager. Hello viewers, welcome to the podcast of Dhan Expert. Today we have a very special guest in our podcast session, right? Mr. Manoj Munot. He's a very great personality in Pune. I can just brief little about. From the education side, he did engineering and served 18 years into different firms, and then vast experience into the financial advisories also, almost 18 plus years, and director into Moneywise Wealth and Neha Investment, so many others, and he is also a part of MIT in our director alumni board, and very good speaker and great learner. So welcome Mr. Manoj. Thank for you. the podcast, right? Thank you, Amit, for Yeah. inviting me. Okay, so we would love to start and with your little intro from your end, because this is something people know, right? But we want to understand little more about from Mr. Manoj, that what exactly Mr. Manoj is and the huge journey you have traveled, right? Just maybe you can give a little brief about it. Good evening. Basically, I started from a middle class family. I'm very happy and blessed. My family has given me good education till engineering. Afterwards, I took all the responsibilities of my family. One thing is there, I was always focused on what I need to do, what I wanted to achieve. When I was in engineering, from my class, there are 80, I was in top 5 in my class in engineering. 85% student went to US. I couldn't go because of my financial conditions. So I decided when I will work in US, I will leave my engineering. And in that journey, I started my career with Advani Orlicon, then I went to Thermax, then I got job in Thermo Fisher Rosemount, that is US based company. They gave me chance to work in US. They sent me to Australia. So I got that engineering experience. I was very happy, super happy. But because I am a social animal, I always love to stay with family, friends and Pune. So that time, in my last job, I was getting good salary. So many people used to come to give me advice about my investments. So I was also impressed what advice people are giving, what they are telling about mutual fund, what they are telling about share market. So I started investing in my job, and when I decided I have to come out and settle in Pune, I selected this field. So it's my total journey from engineering to finance. And in finance, when I came, I did my diploma in business management, then I did my certified personal financial advisor, and throughout my journey I was very good in mathematics. So the calculation always helped me. So if somebody comes to me and tells me I want to make my son crorepati, so I tell them start with 5,000 a month. Keep in mind, if you get, we are not allowed to tell any percentage returns, but it's a calculation I am sharing. If you get 16% returns, so 5,000 a month, in 12 months you will invest 60,000.
In 20 years, you will invest close to 12 lakh. You will achieve your goal in close to 20-21 years. So I always good in numbers. So my mathematics always helped me to connect with the numbers and connect with the goals. Normally, one thing is there in this journey. I was sharing about my journey. So in this journey, I was also very clear about the numbers. Like I tell my investors, if you want to retire happily, if you are close to 55 right now, and if you have 5 crore rupee liquidity, you will be happy. So people ask, I am 45. I tell them, you with 7% inflation, you should have 10 crore liquidity at your age 55. If you are 35, you should have 20 crore liquidity at your 55. So the calculation helped me because of my mathematics, and that mathematics made me really successful distributor also. In that journey, I started full-time business from 2006. I always passionate about equity market, so I and passionate about meeting different people, different industries. So I'm really lucky and blessed. I got in my journey. I met so many people, and I always wish and pray my learning ability from different people, and that helped me to grow in my life. Amit, hope I answered your question. यस सो ऑडियंस डेफिनेटली आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा बिकॉज एज ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस एंड he explained, right, he was into multiple things. Now slowly we'll go into that topics of the financial side, right? Our first question to Mr. Manoj is, right, that how important is financial awareness? We always give importance, Amit, to health, and we always look at the doctor. That doctor has solutions for all the body problems. I have seen various types of people who earn, say, 10,000 a month, 15,000 a month, and some people make crore, 10 crore a month also. That financial awareness decides your happiness. I have seen one thing, people are not attached or not connected to that happiness, and then the problem starts. So about health, I was sharing like a family doctor concept. So like that, you should have a family financial advisor concept also in coming days. So many people, like there are family offices also where people take care of all the investment, people advise, people take a note, and the journey is smooth. So here I will share one story. In Hindi there is one word, bharosa. In English, there are, for bharosa, people say belief and trust. And I know one thing, if there is belief in that, some angle of negativity is there. But if there is a trust, you will trust 100%. Yes, this person will take me forward. This person knows the things. He can also make mistakes, but at least this person will do with 100% trust that he will take me my journey of financial things beautifully. So in life, I mean, trust is an important word. Even I also made mistakes in my this journey. I trusted someone, I lost the money there. My investor lost the money. I lost some investors, but afterwards, right now, that has made me so clear and focused. Unless until I invest my money in some schemes, I meet that fund manager, I have a clear understanding about the philosophy of the fund house, I don't invest and I don't guide my investors also to invest in that, because now the companies are growing. Right now there are 45 mutual fund companies. There are 1,000 plus schemes. So which scheme to select, where to go? And I want to share here one more thing. Say somebody is of 30 years of age and he wants to become crorepati in next 20 years at the time of retirement. For 20 years he has to work. In 1 year there are 12 months. In 1 month there are 30 days. In their 30 days there are 24 hours. In 1 hour there are 60 minutes, and in 1 minute 60 seconds. If you always carry the negative thoughts, how you will be successful? Because right now the hot topic is Trump tariff. Right now the hot topic is war, what India and Pakistan will do.
Indian government stop water to Pakistan, what will happen? So I always tell in this journey, because share market started in 1979, that time Sensex was 100. Now Sensex is touching 80,000. So money became in 45 years close to 800 times. That journey is never smooth. It's not a fixed deposit. So you have to become investor and you have to learn patience. But for keeping a trust, having a patience, फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो वेर यू वांट टू रीच, व्हाट यू वांट. नहीं तो पैसा यही रहेगा, हम सिर्फ पैसा पैसा जमा करते रहेंगे. तो लाइफ भी जीना चाहिए, अपने गोल्स भी पूरे होने चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज शेयर द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड योर गोल, the person who can analyze the thing, a person like an advisor or a distributor, he himself investing the money, he himself showing his portfolio, he is auditing your investment. तो ये गोल की जर्नी में हमने क्या पाया, हमने क्या मिला है, उससे ज़्यादा हमें क्या पाना है, हमें फ्यूचर में कहाँ जाना है, इसके ऊपर ये जर्नी का मेन पर्पस होना चाहिए. तो ही सक्सेस मिलेगा, ये मेरी धारणा है. थैंक यू. या सो मैं समझना चाहूँगा लाइक व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीज़न जो कि इन्वेस्टर्स जो है स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी अपने मनी को ग्रो करने, अपने पोर्टफोलियो ग्रो करने के लिए. व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीज़न? I feel with my experience of from 1988, I am an investor, and last 20 years I am a distributor also. Okay. I feel the noise is the biggest reason. जो हम सुनते हैं, आदमी टीवी देखना कैसे चाहिए कि नॉइज़ बंद करके, उसका फोकस होना चाहिए क्या हो रहा है, उसके लिए टीवी ऑन करो, न्यूज़ देखो. लेकिन ये नॉइज़ आपको इतने थॉट्स डालता है. लाइक इन स्पिरिचुअल कोर्सेज पीपल शेयर अ पर्सन थिंक्स इन अ डे 70,000 थॉट, 75,000 थॉट. उसमें पॉजिटिव थॉट कितने होते हैं? मैं बोलता हूँ यार अपने पॉजिटिव थॉट्स का नंबर बढ़ाइए. वो पॉजिटिविटी आपको आप नॉइज से दूर रहेगा, आपको शार्प करेगा, आपको डिसीजन में लाइक लोग बोलते हैं ट्रेडिंग करने वाला 1% ही सक्सेसफुल होता है, 99% पीपल लूज मनी. तो मैं लोगों को वही बोलता हूँ ना यार कि किसने बोला आपको ट्रेडिंग करो, आप हर एक चीज़ का नॉलेज लो, कोई टिप्स पे मत जाओ. हम अगर अपनी क्षमता बढ़ाएंगे, हम अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, हम अपनी चीज़ों को एनालाइज करने लगेंगे, तो ही ये सक्सेस आएगा. और मैं तो आई ऑलवेज बिलीव ऑन द पावर, आई ऑलवेज बिलीव ऑन गॉड. सो मुझे एक ही चीज़ लगती है कि भगवान भी देखता है ये आदमी पात्र है कि नहीं है. ऐसे कोई टिप से कोई पात्र नहीं बनता है, आपको कुछ हार्डवर्क लेना पड़ेगा. अमित, आप एक चीज़ देखोगे, घर में कोई बच्चा जब जन्म लेता है उसके ऊपर भी माँ बाप सारी सिस्टम 20, 22, 25 साल काम करती है, तब वो बच्चा लायक बनता है वर्ल्ड में जाके कुछ कमाने के. हम किसी ने टिप दे दिया और हम बोले कि वो हमें मल्टी मिलियनर बना देगा, ये चीज़ें बनती तो हर कोई मल्टी मिलियनर बन जाता. तो 99% का फेलियर और 1% का सक्सेस. जो लोगों ने सक्सेस पाया है वो लोग तो पहले पात्र बने ना वो सक्सेस के लिए, फिर ही उन्होंने सक्सेस पाया. और लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखता है. अभी आप देखोगे टीवी पे न्यूज़ आती है मार्केट आज 1000 पॉइंट गिरा, लोगों का 5000 करोड़ का नुकसान हुआ, तो सारी लोग दुनिया चर्चा करती है. लेकिन हम अगर फिगर देखते, इन आउट ऑफ 146 करोड़ पीपल इन इंडिया, ओनली 7.5 करोड़ पीपल फाइल रिटर्न्स. 3 करोड़ ही लोग टैक्स भरते हैं, और उसमें भी 1 करोड़ प्लस टैक्स भरने वाले लोग 45,000 भी नहीं है. तो मैं बोलता हूँ जो लोग 1 करोड़ का टैक्स भरते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. बाकी लोग मैं उनको ऑर्डिनरी नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जर्नी में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए क्या करना है, आपको पात्र बनने के लिए क्या करना है, आपको क्या नॉलेज लेना है, उसके लिए अगर आपको कोई गाइड चाहिए. और मुझे लगता है धन एक्सपर्ट इस प्लेटफॉर्म से अगर लोगों को आपके सामने लेके आ रहा है, तो आदमी पहले क्या देखता है यार सच में ये भरोसे के लायक है क्या, सच में. तो मैं वही बोलता हूँ यार पहले उससे बात करिए. कोई भी डिसीजन हरी में मत लीजिए. कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हुए जो आदमी आपको एडवाइस दे रहा है वो आपके गोल्स को जानने के लिए, आपका रिस्क जानने के लिए पात्र है क्या वो देखिए, तो ही उसके पास इन्वेस्ट करिए. और अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो रोते मत बैठिए यार मैंने ये क्यों किया. लाइफ बहुत बड़ा है, ये जो गलतियाँ आदमी गलतियों से ही सीखता है. हमें वो एनालाइज करना चाहिए, ऑडिट करना चाहिए, हम कहाँ थे, कहाँ पहुँचना है ये समझना चाहिए. तो ये फाइनेंस की जर्नी इजी होगी. जैसे हमारा ये टॉपिक निकला था डॉक्टर से,
हमें वही लगता है कि जैसे आप हेल्थ के लिए डॉक्टर ढूंढते हो, वैसे आज के बाद एक फाइनेंशियल डॉक्टर पात्र हो जिसने कुछ पाया है, कुछ कमाया है, कुछ अचीव किया है, उसके साथ जुड़ो और वो जर्नी में समझो क्या क्या ये जर्नी आनंद है, क्योंकि हम अपने पैसों से आनंद भी पाते, दुख भी पाते। अरे मैंने ये क्यों लिया, जैसे मुझे ट्रेडर लोग मिलते हैं, 1 मिनट में डिसीजन लेना पड़ता है। अरे वो डिसीजन लेने के लिए, जैसे हमें स्टोरी सुनाई जाती थी हथौड़ा की, कि वो मशीन गाड़ी बंद पड़ी और वो आया मैकेनिक, उसने हथौड़ा मारा और 100 रुपये लेके गया। अरे हथौड़ा मारने का 100, लेकिन हथौड़ा कहाँ मारना है, क्या लेना है, क्या बेचना है, उसके लिए पात्र बनने के लिए कितना बड़ा पढ़ाई चाहिए, कितना नॉलेज चाहिए। आप उस चीज़ों को ट्यून, और उसके लिए नॉइज़ दूर रखो, अच्छी चीज़ों से कनेक्ट हो और एनालाइज करने की क्षमता बढ़ाओ। उसके ऊपर सारा ये ब्रह्मांड का खेल और फाइनेंशियल खेल मुझे लगता है, और रिजल्ट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है। थैंक यू। बहुत बहुत वैल्यूबल पॉइंट, पात्र ढूंढना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में इन्वेस्टर कैसे फोकस्ड रहे, इसके लिए आप कैसे सजेस्ट करेंगे? Yes, Amit, this is the biggest distraction all investors, even myself also. I'm a victim of that, of lot of information. लेकिन मुझे एक ही लगता है कि अगर मेरे गोल्स को जाने का रास्ता और गोल्स क्या है, देखो आदमी के पास 1 करोड़ है तो भी आदमी खुश नहीं है, 10 करोड़ है तो भी खुश नहीं है, 50 करोड़ है तो भी खुश नहीं है, और किसी के पास कुछ नहीं है तो भी वो खुश है। तो ये आदमी का सुखी होना या दुखी होना, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है हर एक का सोल्यूशन एवरी ह्यूमन अंदर से कैरी करता है, और उसके लिए मुझे यही समझता है कि मार्केट में कोई आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो जो होशियार लोग हैं वो क्या करते हैं, जब रूमर्स आती है तब पोजीशन बनाते रहेंगे, और जब न्यूज़ आती है तब बेचते रहेंगे। आदमी कूदता है न्यूज़ आने के बाद, नहीं अभी ये कंफर्म हो गया, लेकिन ये पहले जब रूमर थी तब किसी ने पोजीशन बनाई और उसने उसका प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आप साइकोलॉजिकली ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, और मुझे लगता है अगर आपके पास सफिशेंट है तो भी आप 5 या 10% कैपिटल ट्रेडिंग के लिए सिर्फ यूज़ करना है। 90-95% कैपिटल ये गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंटिंग के लिए ही यूज़ करना है। इसके ऊपर और एक टॉपिक अमित आ जाता है। आज गोल्ड का भाव क्लोज टू 1 लाख रुपये तोला है, मतलब 1 करोड़ रुपये किलो। आज चांदी का भाव क्लोज टू 1 लाख केजी है। तो अभी गोल्ड लेना है क्या, सिल्वर लेना है क्या, इसके लिए क्या करना है यार, सारा पैसा वो गोल्ड में डालना है या इंटरनेशनल इक्विटी में डालना है या रियल इस्टेट में डालना है। यार आपको मल्टी एसेट टाइप के प्रोडक्ट जहाँ पे, और नहीं लो मल्टी एसेट तो भी आपका एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। आज हमारे पास इन्वेस्टर आते हैं, हमने उनको डेट स्कीम दी है तो बोलते हैं यार ये 60% वाली स्कीम क्यों दी, ये तो स्मॉल कैप 25% दे रहा है। अरे लेकिन वो स्मॉल कैप टूटता है तो 25% लेके भी जाता है। तो ये लोगों को हमारा काम है ये एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर बन के, सॉरी आई ऑलवेज यूज द वर्ड एडवाइजर बट इट्स अ रियल वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटर। वी आर ऑल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बिकॉज वी आर ऑल रेगुलेटेड, वी आर इन द कंप्लायंस, बट वी वांट टू एजुकेट पीपल एंड लोगों को, वही इन्वेस्टर को समझाना है यार कि ये रास्ता कठिन लगता है लेकिन वो सिंपल कैसे करना है, और लाइफ छोटा सा लाइफ है, इस छोटे से लाइफ में अपने पैसे से आनंद कैसे पाना है, ये काम करना तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी की जवाबदारी। सो want to know little more about the industry from you, like where you are seeing next 5 years financial personal finance, I can say personal finance अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन अमित। जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो वो बिजनेस का फ्यूचर क्या है, अगर वो मुझे मालूम अगर नहीं है तो मैं वो डाउट लेके कैरी करता हूँ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। आई ऑलवेज कैरी डाउट, यार ये मैं तो बेच रहा हूँ लेकिन ये कहाँ जाएगा, लोगों को लॉस होगा प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए हम भी उस फेज से गए, तो हमने एक चीज़ कर ली, पहले पढ़ाई करो, पहले कंट्री की पढ़ाई करो। सो वी आर सो फॉर्चुनेट हियर अमित। जैसे हम एग्जाम्पल देते कि आज हम इंडिया में, एंड इंडिया इज़ ए डेवलपिंग नेशन, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो बोल रहे हैं 2047 where nation will reach, and right now if you study we are the 5th largest GDP in world. So पहले नंबर की GDP कहाँ है, US में, और
आपने देखे रहेंगे तो यूएस में भी 1960 टू 1980 जो जर्नी हुई, उस जर्नी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्होंने पैसा पाया। यूएस में भी उस टाइम $2000 पर कैपिटा इनकम थी। इंडिया ने अभी ये 2 साल पहले $2000 पर कैपिटा इनकम क्रॉस किया, अभी हम $2500 है। तो ये अगर हम कन्वर्ट करें रुपीज़ में तो 2 लाख। आप देखोगे 15,000 के नीचे कौन आदमी काम के लिए मिलता है, और कोई काम के लिए आता है तो आप उसको 50-100 रुपये दे के निकाल सकते हो क्या? Correct, मतलब correct. उसकी भी एक्सपेक्टेशन आज 500 रुपये की हो गई। Right. तो ये पैसा अगर ऊपर से नीचे आएगा, जैसे हमारे मित्र इवन आई ऑल्सो वर्क इन यूएस, तो उस टाइम लगता था यार पूना में बैठे ऑटो में और हम 15 रुपये किलोमीटर 20 रुपये किलोमीटर भी मीटर देखते रहते। वहाँ पे अगर आपको 1 किलोमीटर भी जाना है तो आपको कम से कम यूएस का रेट 200 रुपया है। आप दुबई में भी जाओ तो 150 रुपया जा रहे हो, सिंगापुर भी जाओ तो 150 रुपये किलोमीटर। मतलब ह्यूमन जहाँ इन्वॉल्व है उसकी कॉस्ट देखो। और अगर हमें डेवलपिंग से डेवलप जाना है तो ये कॉस्ट बढ़ेगी, बट इट्स गुड फॉर कंट्री, क्योंकि अगर हम डेवलपिंग है तो हम काफ़ी डेवलपमेंट देखेंगे। तो माई सेल्फ पर्सनली फील कि नेक्स्ट 10, 15, 20 years are for India, Yeah. because we are going for developing nation to developed nation. Correct, correct. और इसमें क्या होगा अमित, इसमें ब्रिज बनेंगे, रोड बनेंगे, घर घर पावर जाएगी, घर घर मतलब जो अच्छा लगता है कि कुछ अपने टैक्स के पैसों से काम हो रहा है, टॉयलेट बन रहे हैं, फैसिलिटीज। करेक्ट। तो ये सब फैसिलिटी के पैसा हो। तो ये इसके लिए क्या लगेगा, स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा। तो स्टील सीमेंट सरकार तो नहीं बनाती, ये कोई बना रहा है, उसके लिए लेबर लगेगा तो लोगों को काम मिलेगा। तो जिस कंट्री में काम निकल रहा है, जिस कंट्री में डेवलपमेंट निकल रही है, आप जाओगे यूएस में इतने स्मूथ रोड है तो वहाँ पे रोज थोड़ी रोड बनेंगे। करेक्ट। इंडिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बनते रहेगा, अभी अच्छा लगता है दिल से, पूना में हम मेट्रो से जा रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था 5 साल पहले कि पुणे में मेट्रो आएगी। हम कंपेयर कर रहे थे यार सिंगापुर में मेट्रो है, दुबई में मेट्रो है। अभी आप कोई भी पुणे के मॉल में जाओ तो आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज वी आर डेवलपिंग। और ये अगर आपके अंदर ट्रस्ट आ गया तो आपके अगले 10, 15, 20 साल कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी आर इन स्ट्रक्चरल बुल रन। हिकअप्स होते रहेंगे, मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन ओवरऑल अगर 12 से 15% अगर आप बनाते हो, आज एक चीज़ समझ लो, हर कोई को टैक्स एंगल समझना है। अगर बैंक में एफडी जो 7% की है, और अभी गवर्नमेंट का भी एआई बहुत पावरफुल हुआ है। गवर्नमेंट आपको मालूम नहीं लेकिन आपको दिख जाता है आपके 16S में 26 मतलब इनकम टैक्स का गवर्नमेंट का जो पेपर आ जाता है उसमें क्लियर दिखता है आपको इस बैंक से इंटरेस्ट इतना मिला है, आपके यहाँ पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, इतना आपने ट्रेड किया है, ये म्यूचुअल फंड बेचा है। मतलब घोर आप बोलोगे यार किसको मालूम क्या हो रहा है, लेकिन आज ये सिस्टम अगर 26AS उसको बोलते हैं, ये सिस्टम पावरफुल होने लगी तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को भी ईमानदार लोग चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये 3 करोड़ टैक्स पेयर, आपने भी देखे रहेंगे हर साल टैक्स पेयर की संख्या बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ों में आज जो 5 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, ये आपके डिमैट अकाउंट बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। लेकिन ये चीज़ों में कौन क्या कर रहा है, इसका काम पढ़ाई करना, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है वो एडवाइस देना, कौन सा फंड मैनेजर क्या कर रहा है, ये काम मुझे लगता है ये डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी का है। और यही नॉलेज अपने इन्वेस्टर को उसके गोल अचीव करने के लिए हेल्प करेगा, ये मेरा मानना है। नहीं, राइट, ट्रू। सो लॉट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री इज गोना बूम, ये तो है। अब इसमें मुझे आपसे जानना है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है, दोनों की बात करेंगे हम, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बात करेंगे और इन्वेस्टर के लिए, वो क्या है? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है ना अमित, लोग आते हैं तो वो ट्रस्ट लेके ही नहीं आते, बिलीव लेके आते, मुझे तो पैसा कमाना है, इस इंडस्ट्री में जाओ तो पैसा मिलेगा। और एक छोटा डाउनफॉल आ गया या बिजनेस नहीं मिला, फिर वो ट्रस्ट डामडोल होने लगता है। फिर आदमी बोलता है यार यहाँ पे मेरा फ्यूचर है क्या? अभी हमने भी देखा है, आई एम देयर इन द इंडस्ट्री 20 years। आज पूना में 3000, 5000, 7000 डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे, लेकिन उसमें से सक्सेसफुल कितने हैं? पूना का भी एक ग्रोथ रेट अच्छा है, 200-250 लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने इस 20 साल की जर्नी में जब से मैं डिस्ट्रीब्यूशन फुल टाइम लिया, बहुत लोग आए, छोड़ गए, निकल गए, लेकिन जो
टिक के रहे, वो अच्छे सक्सेसफुल बने। उन्होंने खुद की भी काफ़ी अच्छी वेल्थ बनाई और लोगों की भी वेल्थ बनाई। अभी गलतियां हर कोई करता है, हमारे हाथ से भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन वो गलतियों को पकड़ के रखने से, देखो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो एक चीज़ मैं ऑलवेज मानता हूँ कि मेरे सर पे अगर मैंने ये चीज़ रखी है तो ये आपको दिखता है ये आदमी कुछ तो बोझा लेके चल रहा है, लेकिन थॉट का बोझा कभी नहीं दिखता है। ये फर्नीचर, अगर ये सोफ़ा बहुत बढ़िया है और अमित जी को अच्छा लगा और एक नया सोफ़ा आना है तो इसको जाना पड़ेगा। लाइफ में हमने एक चीज़ सीखी, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको थॉट्स को बदलना भी पड़ेगा, चेंजेस आर इम्पोर्टेंट, और वो चेंजेस के साथ आगे बढ़ोगे तो ही आप अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करोगे। नहीं तो आपने भी देखा रहेगा, लोग बोलते हैं यार ये निफ्टी इतना हो गया, निफ्टी की कितनी कंपनियां बदल गई। मैं तो बोलता हूँ यार 80% कंपनियां बदल गई, वो काम कर रहे हैं ना अथॉरिटीज़, कंपनियां कौन सी चल रही है, बदल रही है। ये सेंसेक्स क्या हो रहा है, इंडेक्स क्या हो रहा है, अभी भी आपने देखा नई जनरेशन जोमेटो, हर एक घर में जोमेटो स्विगी से प्रोडक्ट आ रहे हैं। आप बुकिंग कैसे कर रहे हो, आप रेलवे का टिकट लेना है तो लाइन में कितने जाते हो और ऑनलाइन क्या करते हो। तो ये सब चीज़ों का अगर आप हिसाब लगाओ तो वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड वर्ल्ड इज गोइंग अहेड विद टेक्नोलॉजी। तो अभी लोग बोलेंगे ये टेक्नोलॉजी जॉब लेगी क्या, यार मैं बोला हर एक के लिए कुछ तो है। और सबसे अच्छी बात, इंडिया इज ए यंग कंट्री, यंग नेशन। यहाँ पे जो यंग लोग हैं, ये लोग जो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, और अभी ऐसे अमित नहीं रहा, बिकॉज दिस इज़ माई 58, आई एम 58 कंप्लीट नाउ। तो ये एज में पहले हम जो जॉब को लगते थे तो सोचते यार इतना साल रिटायर्ड, अभी यंग बच्चे जो आते हैं वो बोलते मुझे 40 तक ही काम करना है, मुझे 35 तक ही काम करना है। ये यंग लोग बच्चों को घूमना भी है, ये यंग बच्चों को लोन लेके, जो हमें सिखाया गया था लोन मत लेना, लोन खराब होता है, लेकिन ये यंग बच्चों को सारी फैसिलिटी भी चाहिए, उनको एंजॉय भी करना है, उनको लाइफ देखा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये जो थॉट है, ये नई थॉट, अगर हम नहीं चेंज हुए, हमने नहीं सोचा, तो हम उनको क्या एडवाइस देंगे। अगर मैं मुझे उनके साथ काम करना है तो मुझे भी मेरी थॉट बदलनी पड़ेगी, मुझे भी उनके साथ सोचना पड़ेगा, तो ही मैं उनके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के पात्र हूँ, नहीं तो मैं क्या पात्र हूँ उसके। ट्रू, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें जो जेनजीज, जो मिलेनियल्स हैं, उनके साथ कम्पीट या उनके हिसाब से हमें चीज़ों को जो है कस्टमाइज़ करना होगा। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल के आता है, लाइक कि जो एक्सपीरियंस एडवाइजर्स हैं, राइट, उनके लिए टू कनेक्ट विद द जेनजीज और मिलेनियल्स, राइट, हाउ व्हाट अप्रोच दे शुड अडॉप्ट टू कनेक्ट विद दिस पीपल। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू अमित, बिकॉज दिस इज़ माई 37th ईयर ऑफ करियर, और हम लोग अभी उतनी मेहनत नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यार जो लोगों ने कुछ सक्सेस पाया है, वो सक्सेस के साथ वो बोलते हैं यार मैं क्यों लोगों के पीछे लगूं, लोग मेरे पास आने चाहिए। तो मुझे लगता है आप जो काम कर रहे हो धन एक्सपर्ट, कि यार लोगों को कनेक्ट करना, इन्वेस्टर और डिस्ट्रीब्यूटर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर अभी डायरेक्टली जाके, जो मैंने 20 साल पहले करता था, रोड पे खड़ा रहता था, या कोई आईटी कंपनी, यहाँ पे भी हिंजोड़ी फेज 2 में भी काफ़ी बार आया, काफ़ी पार्किंग में खड़ा रह के कुछ लिफलेट बांटे हैं, स्टॉल लगाया है, ये चीज़ें अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक लेवल पे पहुँचा। और फिर मुझे लगता है यार मैं अगर खड़ा रहूँ तो लोग बोलेंगे इसने क्या कमाया, या आदमी ऐसे ही रहा क्या, इसमें क्या लिफ्ट हुआ। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का यूज़, और ये टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम जाएंगे, हम धन एक्सपर्ट जैसे कंपनी से हैंडशेक करेंगे, उसके थ्रू, देखो ये पूरा वर्ल्ड जो चेंजिंग है उसमें मैं अगर नहीं बदलूँ, जैसे मैं गाड़ी चलाते हुए मेरे पास 2 ग्लास है, हम एक को मिरर बोलते हैं, एक को आगे की ग्लास बोलते हैं। मैं गाड़ी चलाते हुए मुझे 90-95% आगे ही देखना है, मुझे सिर्फ 5-10% के लिए पीछे के मिरर का रेफरेंस करके यूज़ करना है। लेकिन अगर मैं सिर्फ पीछे ऐसे हुआ था, इसने ऐसा किया, इसने बिजनेस दिया, इसने नहीं दिया, ये चीज़ पकड़ूँ तो मैं आगे क्या देखूंगा। तो लाइफ में मुझे अगर आगे देखने की क्षमता पानी है तो मुझे लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, लोग क्या थॉट से बिजनेस कर रहे हैं, यंग जनरेशन कैसे टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रही है। जो हमारे टाइम, मुझे याद है 30-35 साल पहले इंश्योरेंस एजेंट को बोला करते थे कि यार ये कुछ नहीं, इसको जॉब नहीं मिला तो ये इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। या मतलब ये थॉट्स अभी बदलनी चाहिए कि ये थॉट्स में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते, मुझे एक ही समझता है, हर एक प्रोडक्ट में,
हर एक प्रोडक्ट सिंपल है और डिफिकल्ट है, आप उसको कैसे देखते हो उसके ऊपर खेल है। राइट, आपके गोल के हिसाब से अगर आपने कुछ लिया है पहले, तो उसको ऑडिट करना सीखो, उसको एनालाइज करने सीखो, उसको अपने गोल में डाल दो। यार ये प्रोडक्ट मैंने 15 साल पहले लिया है, ये 5 साल में मैच्योर होगा, ये मेरे इस गोल को काम, हर एक Correct. चीज़ को, हर एक इन्वेस्टमेंट को अगर आपने गोल के साथ अटैच किया, लाइफ इज ईजी। करेक्ट, अगर वही आप थॉट लोगे कि यार ये आदमी आया था, ये डिस्ट्रीब्यूटर आया था और ये चिपका के गया और बाद में मुंह भी नहीं दिखाया, तो क्या गोल रहा और क्या ये रहा। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, गलतियां हर कोई करता है, लेकिन ये गलतियों से मार्ग निकालना, जैसे हम बोलते हैं हर कोई ढूंढता है। जैसे डॉक्टर की एग्जांपल बात हो रही थी, हेल्थ डॉक्टर, उसने ये दवाई दे दी, ये ट्रस्ट है, वो आपको कुछ भी मतलब वो स्टडी करके ही देगा आपके बॉडी का, लेकिन आप एक ट्रस्ट से चीज़ लेते हो और आप ठीक हो जाते हो। वैसे ही इन्वेस्टमेंट में वो ट्रस्ट अगर हम सीखेंगे, ये आदमी मेरा ये स्टडी करके चीज़ दे रहा है, इससे मेरा गोल पूरा होगा। आप देखो 20 साल बाद किसको ढूंढने जाओगे, जब आपके बच्चे की शादी करनी है या आपकी रिटायरमेंट नज़दीक आ गई, आपने किसी के भरोसे, उसने कंप्यूटर पे दिखा दिया साल का 1 लाख डालो आपको 10 करोड़ मिलेंगे। अरे वो प्रैक्टिकल है क्या? परसेंटेज रिटर्न क्या है? हम तो क्लियर बोलते हैं बैंक का रेट 7% है, अगर बैंक रेट से आपको डबल पैसा मिल रहा है उतना ही कैलकुलेशन करो और खुश रहो। क्यों आप 24%, 30%, 40% कैरी करते हो? और उससे क्या मिलेगा आपको? दर्द ही मिलेगा। बाद में 20 साल बाद तो आप किसको पकड़ने जाओगे? क्योंकि आपको जो उल्टा सुल्टा आपने देखा है और कुछ तो माइंड में कैरी किया है, इसलिए एनालाइज करने की क्षमता हो। अगर मैं तो लोगों को वही बोलता हूँ, यार एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना है ना करो, लेकिन 10 लोगों से समझो भी कि जो नॉलेज। और हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, लोग फ़ी देना नहीं चाहते, लोग बोलते कोई आके फ्री में टिप्स दे, फ्री में आके मेरा पोर्टफोलियो देखे। ये क्यों करना है यार? प्रोफेशनल लोग भी अवेलेबल है, प्रोफेशनल लोगों से बात करना सीखो, उनको हायर करना सीखो। उनसे इन्वेस्ट मत करो, लेकिन उनके टाइम का हिसाब लगाओ, और वो टाइम आपके नॉलेज फाइनेंशियल जर्नी के लिए कितना। अभी देखो लोगों के पास 10 करोड़ के पोर्टफोलियो, लेकिन वो 10 रुपए किसी को देने के लिए तैयार नहीं। वो चाहता है यार ये डिस्ट्रीब्यूटर आए, मेरा पोर्टफोलियो एनालाइज करे और मुझे फ्री में एडवाइस दे। उस फ्री की क्या मतलब है? यस, करेक्ट बात बोल रहे हैं आप। तो आप कुछ बोल रहे थे? राइट। सो फ्यू बेसिक क्वेरीज आई वांट टू लाइक टेक इट अप इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा जो है उनके दिमाग में ये रहती हैं हमेशा. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज लाइक, if suppose someone has just a 500 rupees a month, what's the smartest way to start investing? Here also we always advise people, why you are investing. You invest 1 rupee or 500 rupee or 1000, why you are investing, you should ask the question. If your goal is retirement, go in small cap funds, forget it. Start a SIP, systematic investment plan, and be disciplined investor is the answer. SIP is the best way to invest 500 rupee, and don't trade. Don't take more positions in future options or call puts because you are not uplifted. So start with SIP. Keep this money with your fund manager. Okay. So the second question is, what's one money mistake you think most people should avoid? Tips. Don't carry away with the tips. You are not a person to make money on the tips. इतना समझ लो. इसमें वॉरेन बफेट का एक सेंटेंस याद आता है, डोंट लूज योर कैपिटल. टू प्रिंसिपल, डोंट लूज योर कैपिटल, एंड सेकंड, always keep first thing in mind. That's it, very simple. Okay. So want to understand from you, how can DhanExpert help both investor and experts? I think DhanExpert is a bridge or a road to connect expert with the investor. So before starting with someone investment journey, DhanExpert is helping distributors to come and share their views. So it's now duty of the investor to analyze and see whether they can work with this guy, work with this distributor, or they can't go along with that distributor. Because now, because of the technology, without looking at the face, people close deals. Somebody, I am sitting in Pune, but somebody in Chennai can also invest through me. Right, that's true, that's true. And one simple tip which you want to give to someone who's just starting his investment journey. What's in it for me? If I look my goals, if I look
act my future if I don't carry away with the tips. It's a simple way. Every investment, unless until you trust on your country, unless until you trust on your stock market, unless until you trust on the regulators, unless until you trust on the system, you can't be successful. Yeah, that's true. And now, beside investing, since you are a great, you can say, learner, you have many things to maybe like share with the people. I want to understand, beside investing, what others habit every investor should start building. The first habit should be health. Unless until your health is good, मैं लोगों को वही बोलता हूँ यार कि जिसकी जेब भरी है उसके 99% 100% प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन सबसे ये बात बोलने के लिए आपकी हेल्थ भी अच्छी चाहिए, आपके पास वो धन दौलत भी चाहिए कि जिससे आप सारी चीज़ों का एंजॉय, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी हैबिट्स, आपकी हैबिट्स अगर कंट्रोल में है तो वो चीज़ों का आप आनंद भी ठीक से ले सकते हो। और हमारा काम यही है कि लोगों को सिखाना, पैसा कमाओ, पैसा एंजॉय करो, और वो पैसा सोसाइटी को भी दो। जो लोगों को ज़रूरत है उनको देने का काम भी करने का आप में वो भाव आना चाहिए लाइफ में। मैं एक ही चीज़ समझता हूँ, बीइंग ग्रेटफुल, ये सबसे ज़्यादा आनंद देता है। किसी ने आपके लिए कुछ किया है, उनके लिए कृतज्ञता के भाव लाना, और दूसरा देना, गिविंग। तो आप अपना टाइम दो, नॉलेज दो, आपकी सेवा भाव दो, लेकिन ये सब चीज़ें कहीं स्वार्थ रख के मत दो। तो लाइफ में सबसे बड़ा आनंद ग्रेटफुलनेस और गिविंग देता है। Great. उसके लिए आप पात्र बनो, इतना ही हम चाहते हैं। That's great. It was a wonderful insights which Mr. Manoj shared with us. So today we are completing that podcast session, and it was a great session and discussing a lot of important points with Mr. Manoj. Thank you so much for time, sir. Right? Thank you. Amit, Thank you. here I will only share one thing. Thank you Amit, thank you Sushant, and thank you Prashant. ये सब चीज़ों में धन एक्सपर्ट जो काम कर रहा है ये ब्रीच का, तो मुझे लगता है कि ये आगे काफ़ी फ्यूचर, देखो कहीं ना कहीं दिल से ये लोग काम कर रहे हैं। आगे कमर्शियल क्या होगा क्या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ये लोग जो आपके सामने लेके आ रहे हैं, इनका टाइम दे रहे हैं, तो ये भी समझो। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी में धन एक्सपर्ट को भी आप इतने सारे रील देखते हो, यंग जनरेशन काफ़ी वो रील के पीछे पड़ी है, तो एटलीस्ट लोगों के एक्सपीरियंस सीखो। और मैं एक ही चीज़ समझा कि गलतियां करके हर कोई सीखता है, लेकिन दूसरों की गलतियों से जो आदमी सीखता है वो अपना पैसा तो बचाता है। तो लाइफ में कोई आपके लिए दिल से कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए काम कर रहा है, उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा तो सीरियसली लो, इतना ही मेरा मानना है। थैंक यू अमित फॉर योर टाइम। Thank you. Yeah.